বেশ কিছুদিন ধরেই সীমান্তে কাটা তার দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বাড়ছে, আর সেই কাটা তার লাগাতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে বিএসএফ কে। আর তাতে করে পরিস্থিতি রীতিমতো উত্তপ্ত। এরপরই নড়ে চড়ে বসেছে ইউনূস সরকার। বিজেপিকে ঢেলে সাজাতে মরিয়া চেষ্টা বাংলাদেশের। বিএসএফ কে ঠেকাতে সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ার শেল কেনার ছাড়পত্র নাকি দেওয়া হয়ে গিয়েছে। बांग्लादेश ने बड़ा डिसीजन ले लिया है। बांग्लादेश ने अपने इतिहास में, तारीख में, मैं कहता हूं कि फर्स्ट टाइम इतना बड़ा, मैं कहता हूं दिलेर, इतना दिल, शेर जैसा दिल है बांग्लादेशियों का, बांग्लादेश की हुकूमत का, कि हिस्टोरिकल डिसीजन जो लिया है, ये जो फैसला किया, जो हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है, डिसीजन बांग्लादेश ने हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है। बांग्लादेश ने, अगर कहा जाए कि ये इतिहास में लिखने वाला फैसला किया है, और ऐसा बांग्लादेश की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। इस डिसीजन के बाद अब हिंदुस्तान कांप रहा है। अब हिंदुस्तान के ऊपर कयामत बर्पा हो गई है, और बांग्लादेश ने अपनी फोर्स को एक बड़ा एग्जेक्टिव ऑर्डर दे दिया है। उसके बाद अब जो बीएसएफ है वो भी हाई अलर्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है। बांग्लादेश की हुकूमत ने, मैं समझता हूं कि इस डेकेड का बहुत बड़ा फैसला किया है, हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है अगेंस्ट भारत, और अपनी बीजीबी फोर्स को, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स को उन्होंने और ज्यादा मजबूत कर दिया है। एक किस्म से उनको बीडीआर का रूप दे दिया गया है, और जो ऑर्डर दिया है सी एंड शूट का, इससे पहले ये ऑर्डर बीएसएफ के पास था, इंडियन बीएसएफ के पास था, लेकिन अब बांग्लादेश की हुकूमत, प्रोफेसर यूनुस ने भी बीजीबी को कह दिया है कि अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन करे, अगर कोई आपके ऊपर हमला करे, तो फिर आपको ये इजाजत है कि आप भी सी एंड शूट कर सकते हैं, मार सकते हैं। और फिर उसके बाद देखें, ग्रेनेड, जो साउंड ग्रेनेड होता है, जिस तरह से बीएसएफ ने कुछ दिन पहले वो इस्तेमाल किया, अब बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है दोस्तों, वो भी ये यूज कर सकेगी। मैं समझता हूं कि इस फैसले के बाद जो वेस्ट बंगाल मीडिया, इंडियन मीडिया है, और फिर इसके साथ साथ जो हिंदुस्तानी है, वो काफी मुझे परेशान नजर आए हैं। उनकी एक वीडियो क्लिप भी है मेरे पास, आइए दोस्तों सबसे पहले वो देख लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू। বেশ কিছুদিন ধরেই সীমান্তে কাটা তার দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বাড়ছে, আর সেই কাটা তার লাগাতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে বিএসএফ কে। আর তাতে করে পরিস্থিতি রীতিমতো উত্তপ্ত। এরপরই নড়ে চড়ে বসেছে ইউনূস সরকার। বিজেপিকে ঢেলে সাজাতে মরিয়া চেষ্টা বাংলাদেশের। বিএসএফ কে ঠেকাতে সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ার শেল কেনার ছাড়পত্র নাকি দেওয়া হয়ে গিয়েছে, যা দিয়ে তারা সীমান্ত পারে থাকা ভারতের বিএসএফ কে ঠেকাতে পারবে বলে আশাবাদী মোহাম্মদ ইউনূস। সম্প্রতি বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন যে এবার বিজেপিকেও সাউন্ড গ্রেনেড এবং টিয়ার শেল ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে। আপনারা অনেকেই জানেন যে বিজেপি কেন টিয়ার শেল মারেনি, কেন তারা সাউন্ড গ্রেনেড মারেনি। এগুলো তো বিজেপির কাছে নেই। বিজেপির কাছে তো সব প্রাণঘাতী অস্ত্র, মারণঘাতী অস্ত্র তো ওদের কাছে আছে, কিন্তু এগুলো নেই। যেমন টিয়ার শেল, সঙ্গে সাউন্ড গ্রেনেড নেই। এগুলো কেনার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তিনি ঠিক কি বলছেন শোনাবো। ব্যবস্থাটা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা হয়েছে, প্লাস আমাদের এই মাছ টাছ যে অনেক সময় হয়ে যাচ্ছে, প্লাস আমাদের যে কতগুলি এইগুলির ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। যেহেতু আপনারা জানেন যে আমাদের ইসের পরে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, যেগুলি আমরা এখন পর্যন্ত কিন্তু করতে পারিনি, রিপ্লেসমেন্ট করতে পারিনি। যেমন গাড়ি যেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে, আমরা এখনও রিপ্লেসমেন্ট করতে পারিনি। প্লাস আমরা জানেন যে আমরা বিএসএফ রে কোনো সময় বর্ডারে আমরা সব সময় লেথাল ওয়েপনই দেওয়া ছিল। ওই যে আপনারা অনেকে জানেন বিজিবি কেন তারা সাউন্ড গ্রেনেড মারে নাই বা কেন টিয়ার শেল মারে নাই,
বা এইগুলি তো বিজেপির কাছে নাই, যেহেতু বিজেপির কাছে তো সব লেথাল ওয়েপেন, এই জন্য তো ওটা তো তারা মারতে পারে নাই। এই জন্য আমরা তাদের এখনো পারমিশন দিয়ে দিয়েছি এবং খুব তাড়াতাড়ি এই জিনিসগুলি ক্রয় করা হবে। আর যেগুলি এই যে মরণঘাতী ওয়েপন তো ওদের কাছে আছে, কিন্তু যেইগুলি নাই, যেমন ধরেন যে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করা, যে টিয়ার গ্যাস তো ওদের কাছে নাই, প্লাস আপনার ওদের কাছে তো এই যে সাউন্ড গ্রেনেড নাই। এই সাউন্ড গ্রেনেড এইগুলি কেনার জন্য ওদের আমরা পারমিশন দিয়ে দিয়েছি, যেটা নিয়ে আপনারা দেখছেন যে চাঁপাইনবাবগঞ্জে বিএসএফ এর কাছে আছে, কিন্তু আমাদের বিজিবির কাছে নাই। বিজিবির কাছে আছে হলো সব লেথাল ওয়েপন, এগুলি আমরা এদের অনুমতি দিয়ে দিছি ক্রয় করার জন্য। এইগুলি ক্রয় করার আমরা অনুমতি দিয়ে দিছি। আগে তো ক্রয় করার অনুমতি দিছি, ক্রয় করলে কি ব্যবহার করবে না নাকি? যেসব যান ইয়ের জন্য ভাবির জন্য বাজার করে নিয়ে আন, সেসব বলেন নাকি এটা রান্না করার অনুমতি দিছি কিনা? ওটা তো রান্নার অনুমতি লাগবে না। কয়টা এটা পরিমাণ তো আর মানে সব কিছু মানে লেথাল ওয়েপন आगे ছিল, আনলেথাল যেগুলি ওইগুলি। लेथल वेपन्स वो भी अब हैं, और जिस तरह से मैंने कल बताया कि 1000 जो करोड़ टका होता है ना, उसके ऊपर जो प्रोफेसर यूनुस ने कहा है कि भाई आप इसके इतनी जो अमाउंट है उसके जो वो हम डेडिकेट करते हैं अपनी बीजीबी के लिए कि आप उनके लिए हैवी वेपन्स भी ले लें। ये देखें कितनी बड़ी खबर है। और फिर अब ये ऑर्डर भी आ गया है बांग्लादेश की जो बीजीबी के लिए कि भाई आप सी एंड शूट कर सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आप जो वेपन्स हैं, हैवी वेपन्स हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि एक बड़ा धचका है, और इससे ये होगा कि अब जो बीएसएफ वाले हैं या फिर इंडियन जो विलेजर्स हैं, वो 100 बार सोचेंगे अगर वो फेंसिंग तोड़ कर आएंगे या फिर बॉर्डर क्रॉस करके जो स्मगलर भी आते हैं बांग्लादेश वाली साइड पर, वो फिर भाई 100 बार सोचेंगे कि अगर हमने बॉर्डर क्रॉस किया, इलीगली गए, और हमें अगर बीजीबी ने देख लिया और अब उनके पास ये हुक्म भी है, ऑर्डर भी है कि भाई सी एंड शूट, और फिर वो आगे हमारे ऊपर गोली चला सकते हैं और हम मर भी सकते हैं। यानी ये जो डर है, ये जो खौफ है, अब हिंदुस्तानियों को रोके रखेगा। हिंदुस्तानी अब हिम्मत, मैं कहता हूँ वो आएंगे ही नहीं। ये ऑर्डर पहले ही शेख हसीना की हुकूमत में भी हो जाना चाहिए, लेकिन वो तो एक किस्म की उनकी एजेंट थी, पपट थी, जो वो मोदी जी कहते थे वो करती थी। लेकिन भाई बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। आपका दोस्तों इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।